स्वाति जी हाँ जी। आप शुरू करना चाहेंगे प्रोग्राम? हाँ जी। जय जिनेन्द्र सभी को। Wish everyone a very happy and healthy new year. Hope everybody is keeping safe and healthy. It's indeed a great pleasure to see everyone in the new year to meet up, and we are beginning early 9th January. So that is it's a great pleasure, and a great pleasure to see so many people in sharp in time. And today we are beginning with the first session of our new series on basics of Jainism. And as we begin, we'll begin with Mangalacharan. मैं प्ले करता हूँ मंगलाचरण. एक खास मैसेज लेके आई मलाइका मैम की तरफ से for all the contestants and all the gurus. मैंने कहा है she's rooting for you and वो आपको मिस करेंगे आज, लेकिन she said give it everything you have and I think so. As we begin, a very quick overview of Jainin, now a network of 600 professionals working in different areas from finance to IT to medical fraternity to HR. We have members, professional members, as well as enthusiastic homemakers as well who are interested in Jainism. We have had organized multiple sessions. Now we are starting with the 101 session and the first session of the series on basics of Jainism. Basics of Jainism we will plan to cover multiple sessions. It has been organized based on the suggestions of the members. जो series में अभी 10 sessions planned है, और depending on the interest of the members, we'll include more sessions. So sessions include introduction and fundamental of Jainism, Namokan Mantra, Panch Parmeshti, 22 Parishah, Ahimsa, Anekantvad, Sadvad, conduct of Jains, Dev Darshan, Dev Puja Vidhi, Karma Siddhant, 6 Dravya, 7 Tattva, 9 Padarth, Shavak Chin, Bhed, Ahar, 12 Vrat, 11 Pratimaएं, 6 लेशिया और बहुत सारे और टॉपिक्स इंक्लूडिंग लब्धियां एंड गुणस्थान. अभी का प्लान ये है. तो आज हम अपने फर्स्ट सेशन की ओर चलते हैं, which is on introduction and fundamentals of Jainism. And I'm extremely pleased to share that it is being taken by one of our most strong pillars of the Jainin fraternity, Neeraj ji, who resides in UK and has been there for last 18 years, but extremely devoted follower of Jainism. He joined Jainin approximately 1.5 years back, and he has been one of the strongest pillars. He has been with IBM earlier, and currently is a freelance consultant. Belongs to Rajasthan. He did his engineering from Rajasthan and MBA from Gwalior MP. In UK, he is a trustee member of Acharya Shri Vidyasagar Digambar Jain Trust and has been running the Pachala for past 11 years. Even I was not aware of that. I became aware very recently about this. And he has taken sessions in every Jainin series with a lot of passion, and all the members have been benefited
through his knowledge. And so with that, I'd like to invite Neeraj ji for the session today. Welcome, very, very warm welcome, Neeraj ji. And with us also are our mentors, Jaswal uncle, YK uncle, from whom we will look forward to hear once Neeraj ji presents his views and knowledge on these on this topic. And for 40 minutes we will have the presentation, and after that we can have question and answers. So over to Neeraj ji. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद स्वाति जी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज म्यूट पे चले जाएं। तो आज का हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा स्वाति जी ने बताया कि हम जैन में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सीरीज हमारी जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उसके ऊपर आधारित है, और हम बेसिक लेवल पे टच करेंगे। जैसे कि डिमांड थी कि हमें सिंपल भाषा में जैन धर्म को थोड़ा समझना है, और एक और इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कभी आप किसी अजैन व्यक्ति से मिले और वो आपसे पूछे कि जैन कौन होते हैं, जैन क्या है, तो हमें उनको बताने में थोड़ी सी सहूलियत होनी चाहिए, सिंपल भाषा में उनको बता पाएं। ये हमारा पूरी सीरीज का आधार है, और हम बेसिक्स भी सीखना चाहते हैं जैन, तो हमें दोनों तरीके से इस पे ध्यान देना है। तो आज का जो पहला सेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में कितने जैन लोग हैं। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें मालूम होनी चाहिए। फिर जैन कौन होते हैं, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के और दूसरे कौन से नाम हैं जो हम जैन लोगों को मालूम होने चाहिए। उसके अलावा जैन धर्म के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो हम देखेंगे, और जैन धर्म की क्या खास विशेषता है जो इसको बाकी धर्मों से अलग करती है, वो भी हम समझेंगे थोड़ा। और ये भी देखेंगे कि हम लोग जैन लोग मंदिर क्यों जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। जैन ग्रंथों की भी हम थोड़ी बात करेंगे, और हमारे कौन कौन से मुख्य त्योहार हैं, उनको हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, वो भी हम समझेंगे। और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अपना जो हिंदी का कैलेंडर है, पंचांग, उसको भी हम देखेंगे, और चतुर्मास की भी बात करेंगे। चतुर्मास एक हमारे जीवन की जैन लोगों के लिए खास समय होता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो नंबर है, पॉपुलेशन है, ये मैंने रफली कलेक्ट किए हैं, तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन देने के लिए है। तो पूरी दुनिया में लगभग 6 मिलियन यानी कि 60 लाख लोग हैं। तो अगर हम गणित करें तो ये 0.1% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन से भी कम है। तो हम बहुत कम जैन लोग हैं। अधिकतर जैन भारत देश में रहते हैं, 57 लाख लोग, और उसके बाद यूएस में हैं करीब 1.5 लाख लोग। फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हैं सारी गलती को मिला के लगभग 90,000। यूके में लगभग 30,000 हैं, कनाडा में 10,000 है, और बाकी कंट्री में रफली 20,000 है। तो अप्रोक्सीमेट नंबर है, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि हम ज़्यादा नहीं हैं। और सभी जैनियों के पास इतना भी सौभाग्य नहीं हो पाता कि वो लोग कहीं से जैनवाणी का प्रॉपर अध्ययन कर पाएँ। तो जैन धर्म का ज्ञान भी ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ी सी जैन धर्म की प्रभावना करें, लोगों को जैन धर्म का बताएं, और कम से कम हम जैन लोग तो जैन धर्म का अध्ययन करें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब जैन कौन है, साधारण भाषा में अगर कोई हमसे पूछता है या कोई दूसरा जानता है कि जो जैन धर्म का जो पालन करता है, जैन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, वो जैन होते हैं, सिंपल भाषा में। लेकिन हम जैन हैं तो हमें समझना होगा कि हम जैन कौन हैं। तो उसके लिए कहा गया है जिनस्य उपासकः जैनः, अर्थात जिन भगवान के उपासक है वो जैन है। जो हमारे भगवान हैं और उनकी जो पूजा करते हैं वो जैन है। अब जिन भगवान कौन, फिर अगला सवाल आता है। तो जिन भगवान सब मुक्त जीव, जो सब सिद्ध हो गए हैं, और जो वीतरागी हैं और जो सर्वज्ञ हैं। वीतरागी अर्थात जिनका कोई राग मोह द्वेष नहीं है, सब तरह के अटैचमेंट से वो मुक्त हैं, वो वीतरागी भगवान जिन भगवान हैं। सिद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है। और दूसरी परिभाषा है जेति इति जिन्ह, अर्थात जिन्होंने जीत लिया है। क्या जीत लिया है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी कषायों को जीत लिया है, अपने कर्मों को जीत लिया है, और जो शुद्ध आत्मा बन गए हैं, वो हैं जिन भगवान। अब हम जैन लोग जब आपस में मिलते हैं तो हम एक दूसरे को अभिवादन करते हैं जय जिनेन्द्र बोल करके। अगर कोई नहीं करता है तो करना चाहिए। और अपने घर परिवार में भी हम जब सुबह उठते हैं तो अपने बड़ों से, अपने परिवार के बच्चों से, सदस्यों से, सबसे अपने को जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए। अब जय जिनेन्द्र का मतलब क्या? तो इसमें दो शब्द हैं, जिन और इंद्र। जिनों के इंद्र वो जिनेन्द्र हैं,
तो हमारे लिए सब भगवानों के इंद्र कौन है? तीर्थंकर भगवान। क्यों है? वितरागी और सर्वज्ञ तो हैं, पर वो हितोपदेशी भी हैं। हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले। अब किस तरह का हित? ऐसा हित जो हमें परम सुख की प्राप्ति करा दे, अर्थात हमें मोक्ष दिला दे। तो हमारे तीर्थंकर भगवान हमें ज्ञान देते हैं जिसके माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए दिनों के इंद्र हम उनको कह सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि जैन लोग जन्म से जैन हैं या चारित्र से जैन हैं? तो अभी की जो संसार की व्यवस्था है उसके हिसाब से तो जो जिस कुल में पैदा होता है, जिस धर्म में पैदा होता है, उसको धर्म मिल जाता है, उसका वो पालन करता है। तो हिसाब से हम सब जैन हैं, हम सब लोग जन्म से जैन हैं, बाई बर्थ हम जैन हैं। लेकिन उसके बाद हमें जैन धर्म अपने चारित्र में लाना चाहिए। तो हम दोनों तरीके से जैन हैं, जन्म से भी और चारित्र से भी। और अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म में पैदा नहीं हुआ है, जैन कुल में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जैन धर्म का पालन करता है, तो वो भी जैन है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि भाई आप जैन धर्म में पैदा हुए इसलिए आप जैन बनोगे। जैन कोई भी हो सकता है जो जैन धर्म को समझता हो और उसका पालन करता हो। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जैन धर्म में, जैन कुल में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म को पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जैन धर्म क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जैन धर्म जिन भगवान के दिया हुआ धर्म है, जिन भगवान की दिव्य ध्वनि, जिन भगवान की वाणी, अर्थात जिन वाणी। तो जो हमारे ग्रंथों में जिन भगवान की, हमारे भगवान की जो वाणी लिखी हुई है, वही जैन धर्म है। और ये धर्म कैसा है? ये बहिरात्मा को परमात्मा बना देता है। बहिरात्मा कौन? वो साधारण शब्दों में बहिरात्मा वो जो कि शरीर और आत्मा का भेद नहीं समझता हो। तो समझिए शरीर ही मैं हूँ, वो हुआ बहिरात्मा। पर जब हम दिनवाणी पढ़ना शुरू करते हैं और इस भेद को समझ लेते हैं तो हम बन जाते हैं अंतरात्मा, पर तब भी परमात्मा नहीं है। फिर उसके बाद हम परमात्मा बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो जैन धर्म का अध्ययन करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम परमात्मा बन जाएंगे। और मैं मानता हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं उपस्थित हैं जो जैन वाणी में को सीखना चाहते हैं, विश्वास करते हैं, पालन करते हैं, तो हम सब परमात्मा हैं बेसिकली, बहुत बहुत बेसिक लेवल। और जैन धर्म हमें सिखाता है सम्यक रथ, त्रिरथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इसी के सहारे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या जैन धर्म धर्म है या जीने का तरीका है? ऐसा भी बहुत लोग सवाल करते हैं। तो इसका आंसर है कि दोनों ही है। निश्चय से देखें तो ये धर्म है, क्योंकि हम अगर जैनवाणी का पालन करें तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, तो जैन धर्म हमें मोक्ष दिलवा देगा। व्यवहार में कहें तो ये जीने का तरीका है, क्योंकि इससे हमारा जीवन सिंपल बनता है, साधारण बनता है, सरल बनता है, और हमारा जीवन में अच्छाइयाँ आती हैं। तो ये जीने का भी तरीका है। तो अच्छा जीने का तरीका होगा तो हम दिनवाणी का अच्छे से अनुसरण कर पाएंगे। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम जैन धर्म के जो भी सिद्धांत हैं उनको समझें और समझ के अपने खुद के जीवन को और अपने आसपास के लोगों के जीवन को, उनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अच्छा बनाने के लिए उसका उपयोग करें। तो हमारी जो सीरीज रही है जैन की, उसका भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस तरह से रहा है। अब जैन धर्म के हम बाकी नाम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो 4 नाम यहाँ मैंने लिखे हैं: जिन धर्म, आराध धर्म, निर्ग्रंथ धर्म एंड श्रवण धर्म। जिन धर्म क्यों बोला? जिनेन्द्र भगवान ने दिया है ये धर्म हमको, तो जिन धर्म हुआ। आराध धर्म क्योंकि अरिहंत परमेश जी के द्वारा बताया हुआ प्रतिपादित धर्म है, तो आराध धर्म भी हुआ। निर्ग्रंथ धर्म क्यों हुआ? निर्ग्रंथ कौन होते हैं? तो वो मुनि जो सभी परिग्रहों से मुक्त हैं, परिग्रहों से रहित है, वो वे निर्ग्रंथ मुनि। तो हमारे मुनि परिग्रह नहीं करते हैं, तो उनका जो धर्म है वो धर्म कहलाएगा निर्ग्रंथ धर्म। और श्रवण धर्म भी कहते हैं। श्रवण कौन? वो जो तप करके, परिश्रम करके, अपनी आत्मा को तपा करके उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं श्रवण। तो जैन धर्म श्रवण पद्धति पर आधारित है। तो हमारे मुनि हैं वो श्रवण है, तो इसलिए इस धर्म को हम, और उनका धर्म जैन धर्म है, तो इसलिए हम इस धर्म को श्रवण धर्म भी कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य सिद्धांतों की बहुत ब्रीफली कि क्या मुख्य सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत जैन धर्म का कहता है कि मैं आत्मा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर मेरा नहीं है। जब ये दो बात समझ में आ जाएंगी कि आत्मा और शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, और शरीर मेरा नहीं है, तो ये कहलाता है भेद विज्ञान। जिस दिन ये भेद विज्ञान हो जाएगा तो हमें जैन धर्म की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमको मिल जाएगी। तो हमारा शरीर पुद्गल है और आत्मा हमारी जीव द्रव्य है। इन दोनों में अंतर हमें मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। भाव क्या? जो हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो विचार आते हैं, जो हम सोचते हैं, वो सब भाव हैं। इसीलिए जो त्रियोग है, मन वचन काय, उसका क्रम देखेंगे तो मन उसमें पहले रखा गया है। क्योंकि अगर हमारे मन के भाव, मन के विचार सही होंगे
तो हमारे वचन भी अच्छे आएंगे, हमारे कार्य क्रियाकलाप, हमारे कार्य, हमारे जो भी एक्शन होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो हमें अपना मन संभालना है, अपने भाव संभालने हैं। और जैन धर्म में इस पे बहुत खास बात कही गई है कि आप भाव से अगर हिंसा कर देते हैं तो वो भी हिंसा हो गई, चाहे किसी का नुकसान हो ना हो। तो जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है और बाकी धर्मों से ये इस बात पे बहुत अलग करता है। तो अगर हम खुद ये सोचें कि मैं गलत सोच रहा हूँ बैठे बैठे, अगर हम उसी वक्त अपने आप को सुधार लेंगे तो हमारे शब्द किसी के लिए बुरे नहीं निकलेंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे। और जैन धर्म का जो हमारा अल्टीमेट गोल, जो फाइनल गोल है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो है मोक्ष प्राप्ति करना। और मोक्ष प्राप्ति कब होगी? जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पालन करेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो जैन धर्म का ये खास बात है। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र का पहला जो श्लोक है वो कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। और हमारा मूल मंत्र है नमोकार मंत्र, जिसमें हम 5 परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं। वो है अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और परमेष्टि को जो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा अगला सेशन जो है नमोकार मंत्र और 5 परमेष्टि पर होने वाला है, जिसे डॉक्टर विभाजी जैन लेंगी। बहुत अच्छा सेशन होगा, आप उसको जरूर अटेंड करें। तो यहाँ मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर उसके अलावा जैन धर्म ये कहता है कि जो सृष्टि है वो 6 द्रव्यों से मिलकर बनी हुई है। 6 द्रव्य कौन है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें 7 तत्वों का श्रद्धान करना होगा, उनको समझना होगा। वो 7 तत्व है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और जब 7 तत्वों में हम पुण्य और पाप को मिला दें तो ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो हमारा एक पूरा सेशन जो नरेश जी लेने वाले हैं वो है 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ के ऊपर। तो वो सेशन भी आप अटेंड करिए। तो इसमें हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हर जो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हमने एक एक अलग से पूरा सेशन रखा है डेडिकेटेड उस टॉपिक के ऊपर। अब जैन धर्म की क्या विशेषताएं हैं ये हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम जैन है, हम समझते हैं जैन धर्म क्या है, लेकिन बाहर वाला कोई व्यक्ति जो जैन नहीं, वो एकदम से आपसे पूछ रहे कि आपके धर्म की क्या खास बात है, तो हमें वो खास बातें मालूम होनी चाहिए। तो मैंने 10 खास बातें लिस्ट करी है। पहला है अहिंसा, वो हम सब जानते हैं। दूसरा है अपरिग्रहवाद और वीतरागता। तीसरा है अनेकांतवाद और शांतवाद। चौथा है मुक्त जीव, हमारे भगवान। ये भी हमें समझना है कि हमारे भगवान कैसे होते हैं। फिर हमारे धर्म में कोई अवतारवाद की धारणा नहीं है। और हमारा जैन धर्म रीबर्थ यानी कि जन्म और मरण की जो साइकिल है उस पर विश्वास करता है। और जैन धर्म में कर्म सिद्धांत और पुरुषार्थ की बहुत महत्वता है। और उसके बाद सब्सटेंस इज एटर्नल, ये द्रव्य है वो शाश्वत है, वो ना कभी उसका खत्म होता है ना वो उत्पन्न होता है। इसी तरह से जो सृष्टि है, जो विश्व है, जो दुनिया है, ये भी शाश्वत है। और उसके बाद जो हर एक जीव है वो स्वतंत्र है दूसरे जीव से। तो ये 10 खास बातें या विशेषताएं हैं जैन धर्म की। तो इनको हम थोड़ा समझते हैं। तो अहिंसा, अपरिग्रहवाद, अनेकांत, शांतवाद, इन 3 टॉपिक पे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक पूरा सेशन पीयूष जी दोषी जी लेने वाले हैं इन 3 टॉपिक के ऊपर। तो उसमें अच्छे से इस पर चर्चा होगी। तो यहाँ इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। वो उस सेशन को आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, काफी आपको सीखने को मिलेगा वहां पर। अब हम बात करते हैं भगवान, जैन धर्म के में भगवान क्या है। तो मैंने कई बार लोगों से सुना है कि जैन धर्म नास्तिक धर्म है। नास्तिक मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो क्या हम लोग नास्तिक हैं? तो आंसर है नहीं। हम नास्तिक क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम भगवान पे विश्वास करते हैं, हमारे भगवान होते हैं। तो फिर सवाल आता है कितने भगवान? क्या हमारे एक ही भगवान है? नहीं, जैन धर्म में एक भगवान नहीं, जैन धर्म में अनंत भगवान है। ऐसे जो भी जीव मुक्त हो चुके हैं, जो भी सिद्ध प्राप्त हो चुके हैं, जो भी मोक्ष चले गए हैं, तो अभी तक तो हमारे अनंत जीव मोक्ष जा चुके हैं, वो सब हमारे सिद्ध परमेष्टि भगवान हैं। तो जैन धर्म में भगवान जो है सिद्ध भगवान अनंत हैं। और जो मुक्त जीव है वो कौन है? वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, जैसा हमने पहले देखा था, जिनका कोई राग और द्वेष नहीं है, उससे वो मुक्त हैं। और इसीलिए खास बात हमें समझना है कि हमारे भगवान ना तो किसी का निर्णय करते हैं, ना किसी के लिए को बचाते हैं, ना किसी को कोई सजा देते हैं, ना कुछ क्रिएट करते हैं, ना किसी का नाश करते हैं, और ना ही कुछ चीज वो मैनेज करते हैं। ये है जैन धर्म के भगवान, जो राग और द्वेष से रहित वीतरागी भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है। तो अब अवतारवाद की धारणा आती है। तो अवतारवाद जैसा हम समझते हैं साधारण भाषा में कि अगर जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाए, कोई दानव दैत्य जीव आ जाए, सबको परेशान करे, दुख बढ़ जाए,
तो भगवान आते हैं या उनका अवतार आता है और उन जीवों को, पृथ्वी के जीवों को उस दुख दर्द से बचा लेता है। पर हमारे जैन धर्म में ऐसा कोई अवतारवाद नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान तो वीतरागी है, उनका किसी का अफेक्शन नहीं है। और दूसरा जैन धर्म का सिद्धांत है कि एक बार जीव मोक्ष चला जाए तो वापस नहीं आता है। तो हमारे भगवान अवतार नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारे भगवान ना तो किसी का नुकसान करते हैं, ना किसी का फायदा करते हैं, ना किसी के लिए कोई निर्णय करते हैं, कुछ बनाते या किसी का बिगाड़ते नहीं। तो ये एक खास बात है जैन धर्म की। और रीबर्थ मतलब जन्म और मरण की जो साइकिल की बात है, तो जैन धर्म उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं। और सांसारिक जीव जन्म और मरण के साइकिल में क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि वो राग और द्वेष में लिप्त है। और हमारा एक और बात है कि जो हमारा जीव है, मैं आत्मा हूँ, ना मेरा कोई जन्म होता है, ना आत्मा पैदा होती है, ना आत्मा कभी मरती है। होता क्या है, सिर्फ एक शरीर छूट जाता है और नया शरीर मिल जाता है। तो ये शरीर है वो टेम्परेरी है, ये शरीर मेरी आत्मा के लिए किराए का मकान है, ये तो छूटना ही है एक ना एक दिन। आयु कर्म खत्म होगा, छूट जाएगा। उसके बाद मैं अगला जन्म लूंगा, क्योंकि मेरे अटैचमेंट सभी खत्म नहीं हुए हैं, मेरे सारे कर्म बंधे हुए हैं। तो ये चीज हमें, जैसा पहले भी समझा हमने, भेद विज्ञान, आत्मा और शरीर दो अलग चीज हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ समझिए कि जब जीव मुक्त हो जाता है, सिद्ध बन जाता है, तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आता, वो जन्म और मरण की साइकिल से निकल जाता है। तो रीबर्थ की जो बात है वो सिर्फ सांसारिक जीवों के लिए बात है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब एक थ्योरी ऑफ कर्मा एंड पुरुषार्थ, जो कर्म सिद्धांत की बात है और पुरुषार्थ क्या होता है। तो एक बात यहाँ पर कि स्वाति जी इसके ऊपर एक पूरा सेशन लेने वाली हैं, पूरा डिटेल सेशन होगा, तो वहां पर काफी इस पर चर्चा होगी। पर यहाँ ब्रीफली में थोड़ा सा उस पर बात कर लेता हूँ। तो जैसा हम कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसे ही पाओगे, उसी तरह से हमारी आत्मा है, जैसे कर्म करती है वैसे उसको फल मिल जाते हैं। और जो भी कर्म है हमारे मन वचन काय से किए हुए कोई भी कार्य, कर्म को सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करें तो मन वचन काय से किया हुआ कोई भी कार्य वो कर्म है। तो उन कर्मों के आधार पर हमारा जीवन, जो हमने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हुए हैं, उनके आधार पर ही हमें जीवन मिला हुआ है। कोई किस कुल में पैदा होता है, कोई अच्छा स्थिति में होता है, कोई सुंदर होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, तो सबको अपने अपने कर्मों का फल उस हिसाब से मिलता है। और आने वाले जो हमारे भव हैं, जो जीवन है, वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि हम कैसे कर्म करते हैं। तो जैन धर्म कर्म सिद्धांत पे बहुत विश्वास करता है, हमें अपने कर्म अच्छे और सही करने चाहिए। ये हुई कर्म सिद्धांत की बात। और इसमें पुरुषार्थ के ऊपर बहुत महत्व दिया है। ऐसा ना सोचे हम कि भैया हमें तो अपने कर्मों का ही फल मिलना है, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जैन धर्म में पुरुषार्थ की बहुत महत्वता है। अगर हम सही पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपने बुरे कर्मों का जो फल मिलना है उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता को कम कर सकते हैं। और यही सिद्धांत है कि आप सही पुरुषार्थ करो और अपने कर्मों से छुटकारा पाओ और आत्मा को शुद्ध करो। तो ये बात बहुत समझना जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि हम इस मिथ्या उसमें पड़ जाएं कि भाई नहीं, अब तो मुझे जो मैंने किया उसी का फल मिलना है, मुझे तो कुछ करना नहीं, मैं तो हाथ पे आधा पे बैठ जाऊं, ऐसा नहीं है। तो पुरुषार्थ भी समझना होगा। और जैन धर्म में 3 तरह के भावों को समझाया गया है, शुद्ध, शुभ और अशुभ। अशुभ तो हम सब जानते ही हैं, बुरे काम करना, बुरा सोचना, वो अशुभ हुआ। लेकिन और दूसरा शुभ, वो भी सब जानते हैं कि अच्छा करो, दान करो, पुण्य करो, मंदिर जाओ, जैन धर्म को समझो, उसके हिसाब से अपना जीवन जियो, शुभ हो गया। लेकिन जैन धर्म में एक और बात की गई है, वह शुद्ध भाव। और मोक्ष प्राप्ति होगी तो शुद्ध भाव से होगी। अब शुद्ध भाव क्या? तो एक बात ये कि हम पंचम काल के जीव हैं, तो हम शुद्ध भाव का तो आभास कर ही नहीं सकते, उसको हम समझ नहीं सकते। लेकिन इतना समझ लें कि जो शुभ और अशुभ को छोड़ के जो भाव आते हैं वो शुद्ध भाव हैं। तो वो शुद्ध भाव करके ही मोक्ष होता है। पर अभी हम कम से कम अशुभ छोड़ के शुभ तो करें, अगर शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो। अब जैसे बात आई थी कि द्रव्य जो है वो शाश्वत है, उसका नाश नहीं होता, ना वो पैदा होता है ना नाश होता है। तो जो 6 द्रव्य हमारे जीव, पुद्गल, धर्म, कर्म, आकाश, काल, और जो भी चीज हम चारों तरफ हमको दिखती हैं, जो हम इंद्रियों से जिसको परसीव कर पाते हैं 5 इंद्रियों से, वो सब पुद्गल हैं। तो इनका ना तो कोई उत्पन्न होता है, ना कोई नाश होता है। होता है तो क्या होता है, उसकी अवस्था बदल जाती है, पर्याय बदल जाती है। तो एक सिद्धांत है उत्पाद, वे, ध्रुव्य का। तीनों बहुत सिंपल हिंदी शब्द हैं। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, वे मतलब खत्म होना, और ध्रुव्य मतलब कांस्टेंट, जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसा है वैसा बना रहे। तो वह उत्पाद, वे, ध्रुव्य। तो इसमें उत्पाद और वे किसका हो रहा है? पर्याय का। पर्याय नाश होती है और एक नया पर्याय
बन जाती है। लेकिन जो द्रव्य है जिसकी पर्याय बदल रही है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो हम दो छोटे एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। पहला लेते हैं हम आइस वाटर स्टीम। हम बात करते हैं बर्फ, पानी और भाप की। तो जब पानी बर्फ के रूप में होता है, आइस के फॉर्म में होता है, तो सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में। उसको आप गर्म कर देंगे तो पानी बन जाएगा, उसको और गर्म कर देंगे तो भाप बन जाएगी। तो हुआ क्या कि जो पानी है वो ठोस अवस्था से बदल के तरल अवस्था में आया और फिर भाप या गैस अवस्था में चला गया। तो उसकी पर्याय बदल गई। लेकिन उस तीनों स्थिति में जो पानी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि साइंस के हिसाब से 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जो बंधन है वो बना रहता है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। ये हुई बात ध्रुव की, क्योंकि H2O हमेशा बना हुआ है लेकिन उसकी पर्याय बदलती जा रही है। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम सोने के आभूषण हम सब पहनते हैं, सब तरह का उपयोग करते हैं, तो उसमें हम अलग अलग आभूषण बना लेते हैं, कोई भी शेप का बना लो आप, लेकिन सोना वैसा यथावत बना रहता है। एक आभूषण को आपने गलाया और दूसरे में बना दिया, तो एक शेप उसकी खत्म हो गई, तो वो तो पर्याय का व्यय हो गया, और नई शेप में आया तो नई पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन उन सब में जो है सोना बना रहा यथावत, वो हुआ ध्रुव। इसी तरह से जो हमारी आत्मा है वो भी एक द्रव्य है। जैसा कहा ना, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जीव द्रव्य है, ये कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी इसका नाश नहीं होता है, मतलब कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है। ये जीव द्रव्य वैसा का वैसा ही बना रहता है। इसलिए जैन धर्म में कहा है कि जन्म मरण जो हो रहा है वो शरीर छोड़ के नए शरीर मिलने का है। ये जीव तो वैसा का वैसा ही है। अब बात करते हैं सृष्टि की। तो जैन धर्म कहता है कि सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसका नाश नहीं करेगा और इसको कोई मैनेज भी नहीं कर रहा है। ये तो अनादि निधन है, हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी। और एक और खास बात की जैन धर्म में ये जो व्यवस्था है पूरे संसार की, वो सेल्फ मैनेज्ड है, मतलब अपने आप से ही व्यवस्थित है। इसमें कोई किसी को कुछ चला रहा नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है जीवों के साथ वो उनके कर्मों की वजह से हो रहा है। बाकी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी बनी हुई है। तो ये जैन धर्म की खास बात है। तो इसकी वजह से, इस सिद्धांत की वजह से हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई ऐसा नहीं चाहिए जो वर्डिक्ट दे कि भाई यहाँ आप स्वर्ग में जाओगे, आप मनुष्य गति के जीव बनोगे, आप देव बनोगे। ऐसा कोई बैठ करके कोई लिखा पढ़ी नहीं कर रहा है। ये तो आपके कर्मों से अपने आप से ही हो रहा है। ये जैन धर्म की खास बात है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब सारे जीव स्वतंत्र हैं। अर्थात मेरे लिए कोई दूसरा तप नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई अच्छा कार्य करे उसका फल मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो जैसा करेगा उसका फल उसी को मिलना है। और हर एक भव्य जीव परमात्मा बन सकता है। ये खास बात है जैन धर्म की। तो हम सब एलिजिबल हैं कि भगवान बन सकते हैं, पर हमें करना क्या होगा? हमें पुरुषार्थ करना होगा, अपने कर्मों का नाश करना होगा। और कर्मों का नाश करना है पूरी तरीके से, तो मुनि तो बनना ही होगा। क्यों? क्योंकि मुनि अवस्था में ही हम अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को छोड़ सकते हैं, गृहस्थ अवस्था में ये संभव नहीं है। तो ये 10 जो मुख्य विशेषताएं जैन धर्म की थी। अब हम बात करते हैं कि भाई हम जैन लोग मंदिर क्यों जाते हैं। तो जो हमारे जैन मंदिर हैं उसको अपन ध्यान से देखें तो वो समूह शरण की रचना का एक रूप है। तो जिस तरह से हमें समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि से जिनवाणी का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी तरह जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा को हम देखते हैं तो हमें साइलेंटली भगवान की वो वाणी हमें प्राप्त होती है मंदिर में। और जब भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, तो हमारे मन में विचार आते हैं कि भगवान हम भी आपकी तरह से भगवान बन जाएं। मंदिर में जाकर भगवान नहीं बनाएंगे हमको मंदिर, वो तो हमारे कर्मों से भगवान बनेंगे, पर हम उनको देख करके ये प्रेरणा लेते हैं। और साधारण सी बात है, जब मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में कोई भी बुरे विचार चल रहे होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। और एक और खास बात कि हमारे जो भगवानों की प्रतिमा है उनकी स्थापना या प्रतिष्ठित मूर्तियां मंदिर में ही होती हैं, घरों पे नहीं होती। तो वहाँ हमें मंदिरों में जाकर के ही दर्शन करने होते हैं। और जैसा मैंने कहा, भगवान से जाकर के मंदिर में कुछ मांगते नहीं है जैन लोग कि भगवान मेरा भला कर दो, या मेरे को कुछ दुख चल रहे हैं उनको खत्म कर दो, या मुझे प्राप्त करा दो। ऐसा कुछ भी जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में जो कुछ होगा वो अपने पुरुषार्थ से, अपने क्रियाकलापों से ही होगा। तो अपने भावों को हमें संभालना है अपना जीवन सुधारने के लिए। अब जिन ग्रंथ जिनवाणी की बात करते हैं तो जिनवाणी क्या है? तीर्थंकर भगवानों का दिया हुआ ज्ञान, उनकी टीचिंग, जिनवाणी, जिन भगवान की वाणी, वो सब हमारे आगमों में लिखी हुई है। जिनवाणी जब
दिव्य ध्वनि होती है तो गणधर भगवान उसको लेकर के द्वादशांग गिनवाणी के रूप में हमारे तक पहुंचाते हैं। अब सारा ज्ञान तो हमारे पास आया नहीं द्वादशांग गिनवाणी का, पर जो भी ज्ञान है उसको 4 भागों में रखा हुआ है, उनको बोलते हैं अनुयोग। और वो 4 अनुयोग कौन से हैं? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 हैं। तो इसमें जो प्रथमानुयोग है उसमें हमारे जो 63 सलाका पुरुष हैं, तीर्थंकर भगवान आदि, उनकी जीवनियों में लिखा गया है। इन ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें समझ में आता है कि पुण्य का फल कैसे मिलता है, पाप का फल कैसे मिलता है, तीर्थंकर भगवानों ने किस तरह से अपनी तप किया, किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति करी। कर्णानुयोग में बताया गया है कि जीव दशा क्या है इस सृष्टि में, 3 लोगों की रचना कैसी है, कहाँ कहाँ पर किस गति में किस तरह के दुख हैं, जीव कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। तो इन ग्रंथों से पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने कर्म कैसे करने चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, कौन सी गति में हमें जाना चाहिए, ये हमें समझ में आता है। चरणानुयोग में जो हम श्रावक हैं और हमारे मुनि हैं, उनके चारित्र कैसा होना चाहिए, उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, वो उसका वर्णन वहां पर है। तो ये भी हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए। और है द्रव्यानुयोग, जिसमें 6 द्रव्यों का स्वभाव और उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में बात की गई, खासकर जीव और खुदगल द्रव्य, क्योंकि अभी हम जो अवस्था में हैं इसमें जीव और खुदगल दोनों साथ साथ हैं। तो किस तरह से उनका संयोग होता है, कैसे वियोग होता है, ये पूरे सिद्धांत यहाँ पर है। इसको ही पढ़ के हमको मोक्ष मार्ग का पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। ओरिजिनली सारी ग्रंथ हमारे प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, फिर उनका बाद में दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, इंग्लिश और कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। और हम जैन हैं तो हमें कुछ खास ग्रंथों से शुरुआत करनी चाहिए स्वाध्याय की, और कोशिश करें कि अगर हमें कोई गुरु मिल जाए, मुनि मिल जाए, कोई विद्वान लोग मिल जाए, उनके साथ में अध्ययन करें। अगर नहीं मिल पा रहे तो कोई बात नहीं, अपने स्वयं भी कर सकते हैं। पर गुरुओं से क्या होता है कि हमें काफी कुछ अच्छे से समझ में आता है। तो ये ग्रंथ हैं छेडाला, द्रव्य संग्रह, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, रतन करंडक श्रावकाचार, तत्वार सूत्र और समय सार। तो हम इन ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो हमारा जो फाउंडेशन है जैन धर्म का, जो हमारा चारित्र है, वो बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। फिर हम और भी आगे आगे बढ़ सकते हैं। अब हम जैन धर्म के त्योहारों की बात करते हैं। तो मैंने एक खास 11 त्योहारों को लिस्ट किया है जो मुख्य त्योहार हम बनाते हैं। महावीर जयंती, वीर शासन जयंती, धन्यतेरस, दिवाली या महावीर निर्वाण उत्सव, 10 लक्षण या पर्युषण पर्व, क्षमावाणी पर्व, अष्टहानिका पर्व, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन, शुद्ध पंचमी और 16 करण पर्व। इन त्योहारों को समझने से पहले थोड़ा सा हम पंचांग को समझ लेते हैं। तो जो हिंदी में वर्ष होता है उसको पंचांग में हम संवत बोलते हैं। उसमें 12 महीने होते हैं, महीनों को मास, माह, महीना बोलते हैं। और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष है, उसको वदीबी बोलते हैं, और शुक्ल पक्ष को सुदीबी बोलते हैं। और हर एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, तो हिसाब से एक महीने में 30 दिन हुए। कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि जो चंद्रमा है उसकी कलाएं घटती जाती हैं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। तो हिसाब से कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन हुआ अमावस्या, जिसमें कोई चंद्रमा नहीं होता है, उसको इंग्लिश में नो मून या न्यू मून नाइट भी बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन होता है पूर्णिमा, फुल मून नाइट। और जो हर दिन होता है उसको एक तिथि बोलते हैं। इन तिथियों में अष्टमी और चतुर्दशी की बहुत महत्व है, क्योंकि हम जैन लोग इन 2 दिन व्रत करते हैं। अष्टमी इसलिए करते हैं ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि हमें अष्टकर्मों का नाश करना है। चतुर्दशी का व्रत इसलिए करते हैं ताकि हमें इस बात का बार बार ज्ञान आए कि भाई हमें 14 गुण स्थानों में आगे से आगे बढ़ना है। और जो हिंदी पंचांग का जो साल होता है उसके 12 महीने हैं। इसमें एक बात यह है कि जो पंचांग है और इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 1-to-1 मैपिंग नहीं है मंथ्स की। तो चैत्र का महीना बिटवीन मार्च एंड अप्रैल कभी शुरू होकर के अप्रैल मई के बीच में कभी खत्म हो जाता है। और जैन धर्म के लिए जो कार्तिक का महीना है, दिवाली के दिन का अगला दिन, नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, कार्तिक प्रतिपदा, वहां से हमारा नया वर्ष शुरू होता है जैन धर्म का। तो ये बात हमें जाननी चाहिए और ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम सारे फेस्टिवल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो पहले मैंने महावीर भगवान से संबंधित 4 त्योहारों को यहाँ पर रखा है। महावीर जयंती हम सब जानते हैं, महावीर भगवान का जन्मोत्सव है और ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। वीर शासन जयंती, वीर शासन जयंती कौन सा दिन है? ये वो दिन है जिस दिन पहली बार भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली थी
जब गौतम गणधर स्वामी समोषण में उपस्थित हुए थे, और ये उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के 66 दिन बाद ये दिव्य ध्वनि आई थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि यहीं से मेरे को जो आज हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं वो यहीं से आई है। और ये है, इसी दिन से वीर शासन शुरू होता है। वीर शासन मतलब भगवान महावीर स्वामी का शासन। हमारे शासन नायक कौन है? भगवान महावीर स्वामी। और ये मनाया जाता है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन, धन्यतेरस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमें। लोक व्यवहार में धनतेरस बोला जाता है, दिवाली से 2 दिन मनाते हैं, पर एक्चुअली जैनों के लिए वो धनतेरस नहीं है, क्योंकि धन तो परिग्रह है, जैन धर्म तो परिग्रह की बात करता ही नहीं है। ये त्योहार, ये दिन हमारे लिए धन्यतेरस। धन्य क्यों है हम लोग? क्योंकि इस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि आखिरी बार खिली थी, और उस दिन से भगवान महावीर ने योग निरोध करके शुक्ल ध्यान लगाया था। शुक्ल ध्यान सबसे उच्च कोटि का ध्यान है, जिसकी मदद से मोक्ष जाते हैं, क्योंकि जो शुद्ध भाव की बात आती है वो शुक्ल ध्यान से संबंधित है। और यहाँ पर भगवान महावीर ने योग निरोध किया था। तो योग निरोध क्या है? योग में 3 बातें मन वचन काया, तीनों का निरोध कर दिया कि तीनों से कोई भी कार्य नहीं होना, ये हुआ योग निरोध। और ये होता है, ये दिन आता है कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन। तो हमें इस दिन कोई परिग्रह नहीं करना चाहिए। हमें लोग व्यवहार के हिसाब से धन खरीद लिया, सोना चांदी खरीद लिया, बर्तन खरीद, वो नहीं करना चाहिए। वो जैन धर्म की मान्यता के साथ नहीं चलता है। अब दिवाली की बात करें तो दिवाली का दिन क्यों मनाते हैं हम लोग? हम सब जानते हैं, क्योंकि इस दिन महावीर स्वामी भगवान का निर्वाण हुआ था। ये निर्वाण उत्सव है। और उसी दिन, उस दिन वो सुबह मोक्ष गए थे। और एक और खास बात है उस दिन की हमारे लिए, कि उसी दिन उनके जो गणधर थे, गणधर गौतम स्वामी, उनको शाम के समय केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हमारे लिए दिवाली तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है, और ये आता है कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। तो अब हम भगवान महावीर की बात करते हैं तो हमारा सिद्धांत अहिंसा का, तो हम उसका ध्यान रखें। तो हमको पटाखे नहीं चलाने चाहिए, आतिशबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि उससे हिंसा होती है, वो जैन धर्म की मान्यता के हिसाब से नहीं है। ये बात हमको थोड़ा समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं 10 लक्षण पर्व की, जिसको पर्युषण भी बोलते हैं। ये साल में 3 बार मनाया जाता है। हमको पता है कि जो भाद्रपद के महीने में आता है, भाद्र के महीने, वो मुख्यतः मनाया जाता है, पर एक्चुअली ये 3 बार आता है साल में, और हर बार 10 दिन के लिए मनाया जाता है। शुक्ल पंचमी को शुरू होता है, और शुक्ल चतुर्दशी को, इन तीनों महीने में उसका आखिरी दिन होता है। और हर एक दिन एक उत्तम धर्म को बताता है। और उसके बाद हम बनाते हैं क्षमावाणी। क्षमावाणी क्यों बनाते हैं? टू सेलिब्रेट फॉरगिवनेस, क्षमा करने को के लिए हम बनाते हैं। तो इसमें देखो 2 बात होती हैं। एक तो हम दूसरों को क्षमा देते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी क्रोध कषाय खत्म होती है। और हम जब दूसरों से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो हमारी मान कषाय खत्म होती है। तो इसमें 2 कषायों का निराकरण हो जाता है। और ये भी 3 बार मनाना चाहिए। अब क्यों मनाना चाहिए 3 बार? क्योंकि अनंत अनुबंधी कषाय जो होती है, ऐसी कषाय जो 6 महीने चल जाए। अगर हम किसी से नाराज हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई रीजन बन जाता है, 6 महीने तक नहीं बोला, अगर 6 महीने से ऊपर तक हमारी वो कषाय चलती रही, तो अनंतानुबंधी कषाय हो जाती है। और नाम से पता चल रहा है अनंतानुबंधी, अनंत भवों का बंद करवाने वाली, यानी कि वो हमें संसार में फंसा देगी, और इससे नरक गति का भी बंद हो सकता है। तो हमारे आचार्यों ने इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से समझ के रखा है कि साल में 3 बार बनाओगे तो 6 महीने का गैप आएगा ही नहीं। तो हम उस अनंतानुबंधी कषाय से छूट जाएंगे। हमें क्षमा मांगनी चाहिए और क्षमा करना चाहिए। यह क्षमावाणी का पर्व। अब अष्टहानी का पर्व की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अष्टहानी, 8 दिन, यह 8 दिन का पर्व है। और ये भी साल में 3 बार मनाया जाता है, कार्तिक के महीने में, फाल्गुन और आषाढ़ के महीने में। और ये होता है शुक्ल अष्टमी से शुक्ल पूर्णिमा तक। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस वक्त जो सभी प्रकार के देव हैं वो नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? ये मध्य लोक का 8वां द्वीप है। यहाँ पर जो है 52 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। अकृत्रिम मीन्स नेचुरल, जिनको किसी ने बनाया नहीं। और हर एक जिन चैत्यालय में 108 रत्नमयी भगवान की प्रतिमाएं हैं, जिन भगवान की। तो वो देव वहां पर पूजा करते हैं इस समय पर। अब हम जो मनुष्य गति के जीव हैं वो हम वहां नहीं जा सकते, नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, मड़ाई द्वीप के बाद नहीं जा सकते मध्य लोक में। तो हम परोक्ष रूप में यहीं से बैठ करके उन मंदिरों की, उन चैत्यालयों की पूजा करते हैं और सिद्ध चक्र का विधान करते हैं। और इस वक्त जो सिद्ध चक्र का विधान होता है उसकी महिमा को समझने के लिए हमें राजकुमारी मैना सुंदरी और राजा श्रीपाल की कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अपन सबने ये लाइनें तो सुनी होंगी।
श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो में नारायणी। तो आप इस पे ध्यान देना, ये अष्टमी पर्व है। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन की। हम सब रक्षाबंधन मनाते हैं, सब जानते हैं, बहन भाई को राखी बांधती है, वो भी अहिंसा का, और भाई जो है बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है, वो भी अहिंसा का ही रूप है कि जीव दया हो रही है वहां पे। पर हम जैन लोग रक्षाबंधन बनाते क्यों? तो मुनि विष्णु कुमार ने अपनी विक्रिया रिद्धि की मदद से, अकंपनाचार्य मुनि थे, उनका संघ था 700 मुनियों का, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उपसर्ग आया था, और वो उपसर्ग किया था बाली, नमुची और बृहस्पति और प्रहलाद नाम के 4 मंत्रियों ने हस्तिनापुर के पास, और उस उपसर्ग को दूर किया था मुनि विष्णु कुमार ने, और उन 700 मुनियों को बचाया था, तो उनकी रक्षा की थी। तो इसीलिए हम लोग रक्षाबंधन बनाते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार है, तो हमें क्या कारण है वो हमें पता होना चाहिए, और ये आता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन। अब है एक त्योहार अक्षय तृतीया का। तो अक्षय तृतीया का त्योहार जो है, ये आदिनाथ भगवान से संबंधित है। जब वो मुनि थे, मुनि ऋषभ देव थे, तो उनको जो पहला आहार उसमें मिला था इक्षुरस का, जो राजा श्रेयांस ने उनको हस्तिनापुर के जाकर उन्होंने पहला आहार दिया था, और जो आहार दिया था उसी के आधार पर मुनियों की आहारचर्या का जो पूरा प्रोसेस है वो तब से ही वो स्थापित हुआ है, और उसके आधार पर ही सब चलता है। और ये आता है वैशाख शुक्ल तृतीया की। तो थोड़ी सी इसकी जो अपने को पूरी स्टोरी इसकी डिटेल में सुननी चाहिए, पूरी कथा हमें पता होना चाहिए। मैं ब्रीफली बता दूं कि जब ऋषभ देव मुनि बने तो वो 6 महीने तक उन्होंने तपस्या करी। उसके बाद वो आहार के लिए विहार पे गए, पर 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि ऋषभदेव मुनि इसलिए बाहर नहीं निकले थे कि उनको क्षुधा रोग सता रही थी, या क्षुधा उनको या भूख उनको सता रही थी। वो इसलिए बाहर आए क्योंकि वो पहले तीर्थंकर थे, उनको मालूम था कि किसी को ये नहीं मालूम है कि मुनियों का आहार कैसे किया जाता है, तो वो चाहते थे कि ये सबको पता चले। तब जो राजा श्रेयांस थे हस्तिनापुर के, उनको पूर्व जन्म का स्मरण आया, और उनको सपने में आया कि मुनियों को आहार कैसे देते हैं। तब उन्होंने मुनि महाराज को, ऋषभ देव मुनि महाराज को आहार दिया था। तो ये इस धर्म के इस वाले त्योहार की और पर्व की विशेषता है, और इसीलिए हम अक्षय तृतीया को मनाते हैं। तो हो सके तो उस दिन हमें मुनियों को आहार देना चाहिए, नहीं हो तो हमें कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि हम अक्षय तृतीया क्यों मना रहे हैं। अब है शुद्ध पंचमी का त्योहार। ये भी एक बहुत खास त्योहार है हमारे लिए, क्योंकि इसी दिन जो हमारी लिखित में जो दिनवाणी है, उसका जो छठखंडागम है, उसको लिखित में हमें प्राप्त हुआ था, और आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज जी ने ये लिखित में ग्रंथ हमको दिया था 2000 साल पहले, ऑलमोस्ट 160 AD, और तब से ही हमारे पास लिखित में सारी दिनवाणी आई है। और इस दिन हम सभी दिनवाणी ग्रंथों को सजाते हैं, संवारते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी दिनवाणी का ज्ञान मिलता रहे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है इस त्योहार को बनाने का, और इस दिन हम दिनवाणी की पूजा करते हैं। ये आता है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन। और अब हम बात करते हैं 16 कारण पर्व की। 16 कारण पर्व भी साल में 3 बार मनाया जाता है, और हर बार 31 दिन के लिए मनाया जाता है। ये माँ कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा और भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा के दिन होता है, से शुरू होता है फॉर नेक्स्ट 31 डेज। और इस वक्त हम 32 दिनों का व्रत करते हैं, क्योंकि 16 कारण भावनाएं 16 दिन होती हैं। हर दिन जो है हम हर भावना के लिए 2 दिन का व्रत करते हैं। तो अगर हम ये पूरा करें तो पूरे साल में 96 डेज, 96 दिन का व्रत हो जाएंगे। और इस समय 16 कारण की पूजा की जाती है, और जैसा हमने पूरा 16 कारण की जो हमारी सीरीज थी इससे पहले वाली, उसमें अच्छे से समझाया कि 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जो कि सबसे अच्छा बंध है, सबसे ज्यादा पुण्य है उसमें, तो वो उसमें समाहित है। और इसी वक्त पे अगर हम तिथियों के साथ में देखें, तो जब 16 कारण पर्व चल रहे होते हैं, तो उन्हीं के बीच में 10 लक्षण पर्व भी आ जाते हैं। तो ये रहे हमारे त्योहार। तो हम चतुर्मास की बात करते हैं। चतुर्मास नाम से मालूम है, चतुर्मास 4 महीने की बात है। ये जो है वर्षा ऋतु का समय होता है इन 4 महीनों का, और ये आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से शुरू होकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तक होता है। इसमें देखें तो 5 महीने आ गए, क्योंकि पहले महीने के बीच में शुरू होकर के आखिरी महीने के बीच में खत्म होता है। तो आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक का महीना। इस समय में हमारे मुनि महाराज विहार नहीं करते, क्योंकि इस वक्त वर्षा होती है, पानी सब तरफ होता है,
ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो जाती है, तरह जीव पैदा हो जाते हैं कीड़े मकोड़े, तो हमारे मुनि महाराजों को अहिंसा महाव्रत का पालन करना होता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए वो एक जगह रहते हैं। और इस वक्त हम जैन धर्म के जितने भी मानने वाले हैं वो सब धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देते हैं, मुनियों के सानिध्य में रह करके या जहाँ पे हैं अपना स्वाध्याय व्रत तप आदि करते हैं। तो ये हमारे लिए 4 महीने बहुत खास होते हैं। तो ये हुआ चतुर्मास। अब एक जो जैन धर्म में हम लोगों का किस तरह का आचरण या कंडक्ट होना चाहिए, इसके ऊपर पूरा एक सेशन रखा हुआ है हमने, जिसको रानू जी लेंगी, पर मैं क्विकली इसको जस्ट रीड आउट कर देता हूँ कि हम जैन लोगों को व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, क्योंकि व्रत और दान दोनों जीव दया का ही रूप है। जब आप व्रत करते हैं तो स्थावर एक इंद्रिय जीवों की रक्षा होती है, जब आप दान करते हैं तो कोई भी नीडी है, जरूरतमंद है, उसकी मदद होती है, तो वो जीव दया हुई। हमें समता और संयम भाव रखना चाहिए, हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को समझ के उसको धारण करने की कोशिश करते रहना चाहिए। 4 कषायों को छोड़ना चाहिए, 5 व्रतों का पालन करना चाहिए, 6 आवश्यकों हमारे लाइफ प्रतिदिन का में होना चाहिए, 6 आवश्यक, 7 व्यसन हमें छोड़ने चाहिए, अष्टमूल गुण हमें धारण करने चाहिए, 9 देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए, 10 लक्षण धर्म हमें अच्छे से समझ करके अपने जीवन में उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, 11 प्रतिमाएं धारण करने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए और 12 भावनाओं को हमें भाना चाहिए। और इसके अलावा हमारा एक पूरा सेशन होने वाला है देव दर्शन विधि और देव पूजा विधि पे, जिसे डॉक्टर विभाजी जैन लेंगी, और एक पूरा सेशन है श्रावक के भेद और प्रतिमाएं, जो सुनील जी लेने वाले हैं, और 6 लेसिया के ऊपर विपुल जी एक पूरा सेशन लेने वाले हैं। तो वहां पर इन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे रोकता हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मैंने कुछ त्रुटि की हो और कुछ गलती की है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कमल अंकल जो हमारे मेंटर हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से और उनके गाइडेंस से ही मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया और कर पाया हूँ। कमल अंकल ने मुझे काफी अच्छे से बताया, काफी ज्ञान दिया। तो फिर भी मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं कमल अंकल से भी क्षमा मांगता हूँ और आप सबसे भी क्षमा मांगता हूँ। और कमल अंकल का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन आगे चर्चा बढ़ाते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा हो या कोई किसी को कोई कमेंट करना हो तो अपन डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, भैया. It was an amazing session. बहुत सारे questions आए हैं, कुछ suggestions भी हैं. तो we can begin, but उससे पहले I would just request Kamal uncle and YK uncle if they want to add anything. कमल अंकल आप म्यूट पे हैं। नहीं, जोड़ने के लिए कमल भाई को तो कुछ कहना है। नहीं होगा, क्यों कमल भाई ने तो पूरा सेशन देखा है, डिस्कस किया है, तो इनको जो कहना था वो नीरज भाई को कह चुके हैं। एम आई राइट कमल भाई? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ छोड़ा ही नहीं धीरे धीरे। मैं ये देख रहा था कि नीरज जी ने कितनी मेहनत की है, कितना ज्ञान है, एक्सप्रेशन और फ्लो। मैं बहुत बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था, घुसता था फिर पीछे हट जाता था, कि मौका ही नहीं दे रहे थे। इस तरह का इनका फ्लो बना हुआ था। और जो इन्होंने टाइम बढ़ाने की बात की, वो शायद इसीलिए कि अब इनका ज्ञान इतना बढ़ गया है कि वो आधा घंटे में समेट नहीं पाते अभी उसको। चलिए कुछ पॉइंट्स अपन ले लेते हैं। भाई अंकल, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आपके और कमल अंकल के सानिध्य में रह करके ये हमारा शुभ कर्म का उदय है कहीं ना कहीं। तो कि आप दोनों के सानिध्य से ही, खासकर मैं पर्सनली बात करता हूँ, काफी प्रेरणा मिलती है और सीखने को बहुत मिलता है। तो आप दोनों की वजह से मैं मानता हूँ कि ये हम कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे हैं। ये तो आपकी जरूर नवाजी है। चलिए आगे चले। गोत्र के बारे में एक बात हुई थी, तो मुझे ध्यान आ रहा था कि गोत्र का स्टार्टिंग आदिनाथ भगवान के टाइम से हुआ था, और उस समय प्योर कंडक्ट की बात थी। उस समय गोत्र जो पैदा होने से होता था वो था ही नहीं। धीरे धीरे फिर दोनों ऐड हुए। षटखंडागम में 6 भेद कर दिए गए, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। और उसमें 6 भेद इसी तरह किए कि अगर मैं उच्च गोत्र में हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, मैं उच्च हो जाऊं या उच्च नीच हो जाऊं। इसी तरह नीच गोत्र का, तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी और दोनों का महत्व आ जाता है, जन्म लेने से भी
और कंडक्ट्स है। दूसरा, ये जो 4 भैया ने 10 पॉइंट लिए थे जैन धर्म के, पहले 3 ए से स्टार्ट होते हैं, चौथा भैया ने अंग्रेजी वाला दे दिया था। मैं क्षमा सागर महाराज ने 4 एसेस से मुझे एक्सप्लेन किया था। 4 एसेस ऑफ द पैक कार्ड, वो बादशाह तक को हरा देते हैं। तो ये 4th हो जाएगा, उसका नाम अपन अगर रखें आत्मनिर्भरता, तो ये भी ए से स्टार्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया, बीच में मैं देख रहा था कि तीर्थंकर इंडिया में क्यों पैदा होते हैं, तो उसका तो यही है, इतनी महान विभूति जब पैदा हो रही है, उसके लिए भूमि भी तो उर्वरक होनी चाहिए, नहीं तो धर्म की फसल लगेगी कैसे। और इस पर अपन 2 चीजें समझें। एक, आदिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ, उससे पहले इंद्रों ने आके वहां मंदिर बनाए अयोध्या में। तो एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आया, लॉजिकल क्वेश्चन आया, क्या भगवान उन मंदिरों में गए? नीरज जी, गए थे क्या? हाँ, शायद नहीं। तो फिर बनवाया क्यों? वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। नहीं, हम जैसे श्रावकों के लिए मंदिर नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो मंदिर देखिए, तो बहुत होना अच्छा जरूरी है। जवाब दिया गुरुजनों ने। वो तो नहीं गए, पर जिनके द्वारा वो पैदा हुए, वो जो भूमि थी, वो तो नित्य गए ना। उस भूमि को बनाने के लिए वो मंदिर किए गए थे, फसल के लिए नहीं। फसल तो परफेक्ट थी। दूसरा, एक क्षमा सागर जी महाराज जी बताते थे कि जब वो शिखर जी की तरफ जा रहे थे बिहार करते हुए, वहां पर एक वर्धमान स्टेशन है। तो महाराज जी ने लोकल लोगों से पूछा, ये वर्धमान नाम क्यों पड़ा? उन्होंने बताया कि यहाँ तक महावीर भगवान आए थे, वर्धमान आए थे, और यहाँ से आगे नहीं गए थे, लौट गए थे। कारण, आगे कोस्टल एरिया था। कोस्टल एरिया में नॉर्मली नॉन वेज ही खाएंगे। अब वो धर्म और आत्मा की बातें कैसे समझेंगे? तो ये कारण है कि तीर्थंकर भारत में ही पैदा क्यों होते हैं। ये 2 कारण अपन समझे। एक था योग निरोध और शुक्ल ध्यान। तो योग निरोध तो 3 दिन से लेके 30 दिन तक का होता है, पर चौथा जो शुक्ल ध्यान होता है, वो आखिरी अंतर मुहूर्त का ही होता है ना भैया? प्रश्न आया कि क्या आदिनाथ भगवान के आहार संज्ञा नहीं थी? वो क्या हमको सिखाने के लिए उठते थे? तो जवाब आएगा, आहार संज्ञा 6ठे गुण स्थान तक रहती है, और आदिनाथ भगवान हजारों बार 6ठे 7वें गुण स्थान में ऑसिलेट किए थे। तो उस समय उनको संज्ञा तो थी, पर पीड़ा नहीं करती थी, देती थी, क्योंकि उस पर वो नियंत्रण कर लेते थे। एक लास्ट पॉइंट था, 16 कारण व्रत, 31 दिन। तो उसका जवाब यही है कि अल्टरनेट डेज में व्रत या एक आसन किया जाता है। लगातार 16 दिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो भावनाएं तो 16 हैं, लेकिन इसको व्रत दिए जाते हैं 31। जय जिनेन्द्र। Thank you so much, uncle. तो मैं केवल एक हाँ जी। बिंदु पर कहना चाहूंगा कि नीरज जी ने ये इन पासिंग ये कहा था कि हम सब भी परमात्मा हैं एक तरह से। तो उसमें मैं थोड़ा ये संशोधन करना चाहूंगा कि परमात्मा तो उसको कहते हैं कि जिसने कर्मों का और नो कर्मों का और भाव कर्मों का, यानी तीनों प्रकार के कर्मों का क्षय कर लिया है। और उस दृष्टि से देखें तो तीर्थंकर भी परमात्मा नहीं है, पर चूंकि वो उसके बहुत निकट हैं, तो इसलिए उनको भी हम परमात्मा की श्रेणी में रख लेते हैं। तो परमात्मा, हम अभी परमात्मा से तो काफी दूर हैं। अंकल शायद मुझसे वहां गलती हुई थी बोलने में, मैं अंतरात्मा कहना चाह रहा था, शायद परमात्मा गलती से कह दिया। तो अंतरात्मा हम अवश्य हो सकते हैं, उसके लिए भी हमारा प्रयास है। अंतरात्मा की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग विवक्षा से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं।
तो एक दृष्टि से हम चूंकि उसमें शरीर को आत्मा से भिन्न मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम अंतरात्मा है, लेकिन अंतरात्मा के लिए भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि हम प्रारंभिक चरण में अंतरात्मा के हैं। मैं फिर एक बार बहुत बधाई देना चाहूँगा नीरज जी को कि इतने बृहत विषय को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से और इतने प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। हाँ, समय अपना लिमिटेड रहता है, तो उसमें कोशिश ये है कि अपन 35-40 मिनट कंप्लीट करें। तो वो सेलेक्टिव रहा, पर हाँ ठीक रहा। धन्यवाद, आपका सहयोग था अंकल। और बहुत सारी अप्रिसिएशंस आ रही हैं चैट पे भी, तो डेफिनेटली वेरी वेल डिजर्व्ड नीरज भैया। एंड अब काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ सजेशंस भी आए हैं, जैसे कुछ लोगों ने यूएस से ज्वाइन किया, उनके बच्चों ने भी ज्वाइन किया बेसिक्स ऑफ जैनिज्म सीरीज। तो एक सजेशन ये भी था कि इंग्लिश के कैप्शंस आ सकते हैं क्या। So I'll just ask the people, if you have any questions you can ask in English. यहाँ पे anybody is equipped to answer that, and feel free to ask any sort of basic questions. दूसरा ये है कि सजेशन एक पॉइंट ऐड कर दूं क्या, जो इंग्लिश वाला पॉइंट है कि जो स्पेसिफिकली इंग्लिश में सेशन चाहते हैं ना, तो अपन उनके लिए एक अलग से सेशन पूरा इंग्लिश में रख सकते हैं। ऐसा कुछ अपन प्लान भी कर सकते हैं अगर सबको ये सजेशन आया है, ये सजेशन आया है कि एक सेशन इंग्लिश में रख सकते हैं क्या सेम सेशन को। हाँ, और टाइमिंग्स उनके हिसाब से रख लेंगे, यूएस के हिसाब से, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, राइट। और अगर आगे बेसिक्स ऑफ जैनिज्म की अभी हमने 10 सेशंस की सीरीज प्लान की है, लेकिन अगर एनी अदर topics in Jainism basics that you would want to deep dive on, you can suggest and we can take this series forward. क्योंकि इस साल का उद्देश्य है कि अब 2 साल कोरोना काल के बाद सबको धर्म की महत्ता और पता चली है, थोड़ा अपने में रमने का थोड़ा मौका मिला है घर में रह के। तो let us begin from the basics and let us learn it well. अब coming to the questions, काफी सारे questions आए हुए हैं, तो I want to call the people who ask the questions. It may take a little bit of time, but मैं एक आभा जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया था, उनको बुला रही हूँ, बाकी फिर क्वेश्चंस हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे। आभा जी, इफ यू आर देयर। जी 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 जी, जय जिनेंद्र, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इसके मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पहले किसी से पूछा नहीं है, बट मैं कभी किसी को फॉर एग्जांपल कि मेरा बेटा ही अगर मुझसे ये पूछता है तो मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत अच्छी तरह से इसको समझ नहीं पाई हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब सब कुछ निश्चित थे तो फिर हमारे कर्म करने से, हमारे अच्छे या बुरे कर्म करने से चीजें कैसे बदल सकती हैं? पुरुषार्थ और कर्म, ये मैं कभी बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाई हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये मैं समझ पाऊँ। वाईके अंकल, कमल अंकल, इफ यू वुड लाइक टू टेक इट अप। वाईके अंकल, यू आर ऑन म्यूट। हाँ, आज ही मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था साइट पे, उसमें था नियतिवाद और पुरुषार्थ। मेरे ख्याल से इसमें आपका ये कवर होगा क्वेश्चन। तो जैन धर्म नियतिवाद को नहीं मानता, लेकिन मेंशन तो होता है। तो उसका जवाब ये है, पुरुषार्थ करने के बाद में व्हाट एवर इज लेफ्ट आउट, जो मेरी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिला, वो नियति है। मैं पहले से नियति नहीं मानूंगा। पहले से नियति मानने वाले तो फिर दूसरे दर्शनों में आ जाए। कमल भाई। पुरुषार्थ का सबसे आसान तरीका समझने का ये है कि जब कर्म उदय में आते हैं, कर्म भी हमारे अपने किए हैं जी, तो कर्म करते समय हम स्वतंत्र हैं, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हर एक चीज पहले से डिटरमिन्ड है, वो प्री डिटरमिन्ड नहीं है। उस समय हमारी स्वतंत्रता है कि हमारी आत्मा में जो राग द्वेष होते हैं, हम जो योग करते हैं, मन वचन काया की जो क्रियाएं करते हैं, उन सब के कारण कर्मों का आश्रव होता है। तो वो हमारी उस समय इंडिपेंडेंस है। फिर दूसरी बार हमारी इंडिपेंडेंस कब आती है? दूसरी बार हमारी इंडिपेंडेंस तब आती है जबकि हमारे
निबद्ध कर्म जो है, हमारे जो पूर्वबद्ध कर्म है, जब वो उदय में आते हैं तो उस समय जो हमारे शुभाशुभ जो हमें अनुभव होते हैं, साता साता जो भी कुछ अनुभव होता है, तो तब हमारे परिणाम कैसे होते हैं उसको उनमें हम बह जाते हैं। जब हमारे शुभ कर्म का उदय आया तो हम अपने फूले नहीं समाते, हम अपनी बड़ाई करने लगते हैं कि हम सब ये अहंकार हम में आ जाता है कि हम ऐसे हैं, हमें इतना सुंदर शरीर मिला है, हमें इतना ज्ञान मिला है, हमें इतना ऐश्वर्य मिला है, या हम ये समझते हैं कि ये तो कर्मों का फल है, हम इससे क्यों प्रभावित हों। तो या जिसी तरह से जब हमारे ऊपर कोई दुख होता है, या हमें शारीरिक कष्ट होता है, या कोई अनिष्ट संयोग होता है, या हमारे इष्ट का वियोग होता है, तो तब हम उससे बहुत विचलित हो जाएं, बहुत पीड़ित हो जाएं, बहुत हम आर्त ध्यान करने लगें, या फिर हमें अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उसमें हमारा बहुत रौद्र ध्यान हो। तो इस पर हम अगर नियंत्रण करते हैं, उसमें हम अगर समता बनाए रखते हैं, तो ये हमारा पुरुषार्थ है। फिर उससे हमारा और नए कर्मों का बंध नहीं होता है। तो यही है कि हमें स्वतंत्रता है, हमें स्वायत्तता है, हम ऑटोनॉमी कह सकते हैं इसको, इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। तो हम ये नहीं, हमारा दर्शन मानता कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ पहले से तय नहीं है। काफी अंकल जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और मेरा डाउट है। सब कुछ पहले से तय है इसलिए हम मतलब ऐसा क्वेश्चन आया मेरे मन में, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि केवल ज्ञान में भगवान के सब कुछ झलक रहा है, जो होना है वो सब कुछ झलक रहा है, पहले से झलक रहा है। तो इसीलिए मुझे ये डाउट आता है कि अगर सब कुछ पहले से उन्हें पता है, उनको झलक रहा है, तो हमारे अच्छा कर्म करने या बुरा कर्म करने का जो एक भाव है वो भी पहले से ही तय है। तो इसमें हमारे पुरुषार्थ का क्या रोल हुआ? नहीं, ये फैलेसी हो गई ना, यहाँ पर फैलेसी हो गई। यहाँ पर अगर आपने एक तो केवल ज्ञान में उन्हें सब पता है, ये कहना गलत है। वो क्योंकि उनकी जानने की कोई इच्छा नहीं है, वो बिल्कुल पूर्णतया उदासीन है। वो तो जैसे शीशे की तुलना की जाती है केवल ज्ञान से, कि वो अपने आप स्वतः उसमें द्रव्य की जितनी 6 द्रव्यों की जितनी पर्याय हैं, वो सारी की सारी उसमें प्रतिबिंबित होती हैं स्वतः। ना उन्हें जानने की इच्छा है, ना उन्हें किसी से कुछ सरोकार है ना। तो वो एक अपनी जगह की बात है। लेकिन जो भी जीव है, उस जीव का जो एल्बो रूम है जिसमें कि वो मैनोवर कर सकता है, उसे वो करने के लिए स्वतंत्र है। ये बात दूसरी है कि वो क्या करेगा उन्हें मालूम है, पर उससे तय नहीं हुआ। उसे इंडिपेंडेंस है, उसके लिए वो बंधन नहीं है कि उन्हें दिख रहा है। उन्हें दिख रहा है तो क्या हुआ, तुम जो कर रहे हो वो दिख रहा है ना उनको। अंकल मेरा छोटा सा डाउट जो दूसरा करोगे तो वो दूसरा दिखेगा उन्हें। नहीं अंकल, जैसे तो मैं हमारे बहन इस पे एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, वो है दीपायन मुनि का संस्मरण। दीपायन मुनि को ये बताया गया कि 12 साल बाद द्वारका आपके निमित्त से जलेगी। तो अब वो ये निर्धारित करके बैठ जाते कि भाई मेरे से जलेगी, मुझे करना क्या, मैं तो द्वारका में पड़ा रहूंगा, एक कोने में ठाठ से रहूंगा, मुझे क्या करना, क्योंकि भगवान ने कह दिया। तो उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने क्या किया, मुनि व्रत लिया, और मुनि व्रत लेके बहुत दूर चले गए। हालांकि उनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई और वही हुआ जो भगवान ने देखा था। पर जो 1 मिनट बहन, जो 12 साल उन्होंने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ का उनको पेमेंट क्या हुआ? उस पुरुषार्थ का पेमेंट ये हुआ कि 12 साल तक वो किस आनंद में रहे। 1 मिनट के आनंद के लिए शराबी अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। उन्होंने तो 12 साल मुनि व्रत का आनंद लिया, नंबर 1। नंबर 2, जब हो भी गया, इतने में उनकी तीर्थंकर प्रकृति बन गई। आप देखिए, भगवान के अनुसार चले तो गए, लेकिन उसके पुरुषार्थ का रिजल्ट क्या रहा? 12 साल वो हो सकता था यहाँ बैठ के कुछ व्यसनों में रहते, अब वो मुनि व्रत बने, ये उनका पुरुषार्थ था। और उसका फल क्या मिला?
भगवान के कहने के बावजूद कि उनको तीर्थंकर प्रकृति बन गई। अब प्रश्न आया, क्या वो भगवान की वाणी को गलत सिद्ध करना चाहते थे? नहीं, ऐसा आदमी भावलिंगी मुनि बन ही नहीं सकता। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जितना मेरे हाथ में कर्म है, पुरुषार्थ है, मैं उसे पूरा करूंगा, रिजल्ट तो वही होगा जो भगवान ने देखा। तो पुरुषार्थ और भाग्य का यहाँ पर इस वाले संदर्भ से क्लियर अपन को एक इंडिकेशन मिल जाता है और इसका एडवांटेज भी पता लग जाता है। जी Abhaji, we can also discuss this more in subsequent sessions. जी बिल्कुल Yeah, बिल्कुल in the interest of time हम बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। टाइम तो हमने 9 o'clock तक सोचा था, बट क्वेश्चंस और हैं, तो शुड बी एक्सटेंड बाय अनदर 10 minutes? I think let's do that at yes yes yeah. So दिनेश जी ने हैंड रेज कर रखा है। So दिनेश जी, you have a question? हाँ, जस्ट आई वांट टू से, जो कर्म सिद्धांत के ऊपर बात चल रही थी, अगर आप वाकई मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे या बुरे आपको किसी भी तरह के कर्म नहीं करने हैं, क्योंकि जो अष्ट कर्म आप कहते हैं, 4 अच्छे कर्म है, 4 बुरे कर्म है। आप किसी भी तरह के कर्म का बंध करते हैं तो आप संसार ही बढ़ा रहे हैं। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आप उन्हें भुगतेंगे, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप उन्हें भी भुगतेंगे, लेकिन जब तक 8 कर्मों का नाश नहीं होगा आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। दैट वाज वन। सेकेंडली, मैंने ये क्वेश्चन स्वाति जी को डायरेक्टली भी भेजा। अगर श्री जिनेंद्र भगवान को समोशरण में केवल ज्ञान के बाद सब कुछ नहीं ज्ञात है तो वो सर्वज्ञ कैसे कहलाएंगे? सर्वज्ञ वर्ड का अर्थ यही है जो सब कुछ जानता हो। तो ये कहना गलत है मेरे मत में कि भगवान सर्वज्ञ नहीं है, भगवान सर्वज्ञ है। और उसके बाद आभा जी, जो आपका क्वेश्चन है, जब आपके अच्छे कर्म का उदय आता है आप उसे भोगते हैं, या जब आपके बुरे कर्म का उदय आता है और आप तृप्त होते हैं, किसी चीज से कोई चीज आपको सताती है, बिल्कुल सही कहा गया कि उस समय में आप आगे के लिए कर्म कैसे करते हैं। जो आप पीछे करके आए वो आप अभी भुगत रहे हैं, चाहे आप अच्छे में भुगत रहे हैं चाहे आप बुरे में भुगत रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस समय में आप अगले जन्म के लिए या अगले भवों के लिए आप किस तरह के कर्म बंद कर रहे हैं, इस पे ये डिपेंड करता है कि आपके आने वाले जन्म या आने वाली पर्याय में आपको क्या प्राप्त होगा। आपका उदाहरण सीधा सा है। एक मांसाहारी शेर जब मुनि श्री के प्रवचन सुनता है और वो मांसाहार करना छोड़ देता है और वही जीव आगे चल के भगवान महावीर स्वामी बनता है, तो यही कर्म का सिद्धांत सीधे सी बात है कि आप अगर जानने के बाद भी दुष्कर्म करते हैं तो फिर तो आप बुरे कर्मों का ही बंद कर रहे हैं आगे के लिए। बिल्कुल। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन बनता है, बट लुकिंग टुवर्ड द टाइम कांस्टेंट मैं अगली बार पूछूंगी। आप कंटिन्यू करिए। श्योर। तो नीरज जी आपने बिल्कुल सही बताया, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवाली पर होता है और तभी से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था कि हैप्पी न्यू ईयर फिर 1 जनवरी को जैन लोग क्यों बोलते हैं। हाँ जी दिनेश जी, तो अपना न्यू ईयर अगले दिन से शुरू होता है, दिवाली के अगले दिन से। और हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोलते हैं 1 जनवरी को, तो ये तो अब सांसारिक प्रचलन हो गया है, क्योंकि हम सब चीज जो है ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और उसका सिंपल आंसर एक ये भी हो गया आजकल कि अक्रॉस द ग्लोब एक कॉमन चीज होनी चाहिए थी, ताकि ग्लोबलाइजेशन में सब लोग एक लेवल पे आकर बात कर पाए। तो हम लोक मान्यता के हिसाब से, मैं इस कंट्री में रहता हूँ, तो जो मेरे अंग्रेज दोस्त हैं उनको मैं मेरी क्रिसमस भी बोल देता हूँ एक लोक मान्यता के हिसाब से। तो आप व्यवहार से आपकी बात बिल्कुल उचित है नीरज जी, बट मेरा थोड़ा सा अपना ये व्यू है कि अगर हम जैन धर्म के मूल सिद्धांतों की बात अपने बच्चों को आज सिखाने के लिए एकत्र हुए, तो कम से कम सेशन का प्रारंभ हमें हैप्पी न्यू ईयर से ना करना चाहिए था। Thank you. That was the reason of that question actually. हाँ, नहीं, आपका कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में आ गया, तो आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। और आपकी इस पॉइंट के लिए एक्सप्लिसिटली मैंने वो पॉइंट मेंशन किया था मेरे प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आज हमारे साथ क्या स्थिति हो रही है कि हमें जैन धर्म की खास बातें पता नहीं है एज ए जैन, क्योंकि
अवेलेबिलिटी भी नहीं है नॉलेज की, तो मैंने एक्सप्लिसिटली उस पॉइंट को वहीं रखा था जो आप कह रहे हैं। तो आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। अपन को जैन लोगों को आपस में जय जिनेंद्र बोलना चाहिए और आपस में एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं एक जब हमारा शुरू होता है दिवाली के अगले दिन तब से करनी चाहिए। और महावीर और दिवाली के दिन भी हमें महावीर भगवान के निर्वाणोत्सव के हिसाब से ही एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो ये आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और ये हमें अपने प्रचलन में लाना चाहिए। थैंक यू। नीरज जी का एक Thank you, पॉइंट और दिनेश मैं जी। हाईलाइट करना चाह रहा था। नीरज जी ने कहा कि जब तक हम न्यूट्रल ना हो जाएं, शुद्ध अवस्था में ना पहुंच जाएं, तब तक मुझे शुभ कर्म करने हैं और वो शुभ कर्म मेरे पाप कर्म को क्षय करने में हेल्प मिलेंगे, क्योंकि शुभ प्रकृतियां एंड तक चलती हैं, भगवान के भी रहती हैं, तीर्थंकर के भी रहती हैं और 14वें गुण स्थान तक रहती हैं। नेक्स्ट अंकल, हम लोग ये दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, अब ये सही है गलत है? क्योंकि मैं थोड़ा देखता हूँ, मैं गलत तो नहीं, सारे बहुत जैनियों को गलत। देखता हूँ लक्ष्मी गणेश, और उनके मंदिरों में, उनके घरों में, दुकानों में, मतलब भैया, मुझे ख्याल इस नहीं प्रेजेंटेशन के बिल्कुल बाद ही सही आया। बोला आपने, हम भी रखते हैं। ये व्यवहार में गड़बड़ हो रहा है और अच्छा, अपन को इसका ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ हम वीतरागता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूजा हम रागी देवी देवताओं की करते हैं। ये तो स्थूल मिथ्यात हो गया, सूक्ष्म नहीं, स्थूल मिथ्यात। कम से कम इससे तो अपन को बचना ही चाहिए। अंकल एक छोटा सुगुरुदेव सा क्वेश्चन और सुशास्त्र है। की जो परिभाषा आती है, अगर अपन उसको समझें तो आंसर अपने आप से मिल जाता है। और कभी कभी हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमें हमारे वितरागी भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो उसमें सारी बात अपने आप समाहित हो गई कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वो बोलने की शायद हमको जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस हिसाब से हम समझ लेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। और यही बात आती है, अपने जो जैनिंग के सेशन है उनका मुख्य आधार यही है कि क्या सही है वो समझें और सही करें। तो अपने आप से जो नहीं करना है वो नहीं होगा। दूसरे नीरज जी, हम लोग यात्राएं बोलते हैं ना, भगवान हमें ठीक कर दो, महावीर जी की यात्रा करेंगे, ये हम लोग, ये सही है गलत है? मुझे तो सेशन के बाद लग रहा है गलत है। मिथ्यात्व है, देखो, जैन धर्म का सिद्धांत है कि हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, ये मुख्य सिद्धांत है। बाकी कमल अंकल और भाई के अंकल ज्यादा सही जवाब देंगे। पर जो आपने कहा उसमें यही है कि अपेक्षा रखना, जैसे सिंपल बात आई है कई बार अपने 16 कारण सीरीज में कि आप व्रत करते हो और ये बोलो भगवान मुझे शुभ कर्म मिल जाए इससे, तो व्रत बेकार है, वो करना ही नहीं है। आप व्रत करते हो तो ये नहीं सोचो कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ फायदा हो जाए। जैन धर्म तो ये कहता है, बाकी तो कर्म के क्षय के लिए व्रत करते हैं तो कर्म क्षय, वही प्रार्थना की जाती है ना कि कर्मों का क्षय हो, उसके लिए आप करते हो। यही एकमात्र अपेक्षा होनी चाहिए और कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी लौकिक सुख के लिए कोई व्रत करते हैं या कोई पुण्य कार्य करते हैं तो वो निदान की परिभाषा में आता है। इस पर एक प्रश्न किया गया है गुरुजन से कि करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करो, मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ और बगल में सब लोग जा रहे हैं हनुमान जी और आदि की जगह मांगने के लिए, तो मैं क्या करूं? तब उसका जवाब यही है कि अलबत्ता तो मांगो मत, मांगना है तो अपने पिता से मांगो, ताकि आपका अपने पिता तो दे नहीं रहे है। हाँ, अपने पिता डायरेक्टली नहीं देंगे पर इनडायरेक्टली बहुत कुछ देंगे और दे रहे हैं। जय जिनेंद्र। हाँ जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद हम ओवर करेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने रिस्पेक्टिव जैनिन ग्रुप्स में आप क्वेश्चंस डालिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीक ही, मतलब उसी समय हमारे एक्सपर्ट्स आंसर दे देंगे। तो प्लीज पोज द क्वेश्चंस। एक संजय जी का क्वेश्चन था। संजय कितिक जी, आप करना चाहें तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो इफ ही इज नॉट देयर तो No, I am there. ओके, हाँ हाँ। ये मैं बात पूछना चाह रहा था कि अपना हर साल जो होता है महावीर निर्वाण महोत्सव अपन जो मनाते हैं, तो उसकी तिथि कार्तिक कृष्ण अमावस्या है,
तो वो तिथि कभी एक दिन पहले आता, कोई 2 दिन दूसरे दिन मनाता है, कोई पहले दिन मनाता है। उसके लिए कोई सॉल्यूशन है क्या नहीं, वो मैं जानना चाहता था। क्योंकि हर साल मेरी मम्मी बोलती है, उस हिसाब से मैं करता हूँ। कोई मंदिर में अलग तारीख आती है, तो वो ऐसा क्यों होता है? देखिए, डिफरेंस तो होते हैं, मैन टू मैन डिफर करते हैं। Why और it is जैसा not आपने harmonized? सजेस्ट किया, जैसा आपने पॉइंट आउट किया, आपकी माँ जो कहती है वो बेस्ट, आपके मंदिर में जो व्यवहार चल रहा है वो बेस्ट है ना, अपन उसको माने, क्या फर्क पड़ता है एक दिन पहले या बाद में मान लिए। कमल तो जी, मंदिर जी में अलग तारीख क्यों होता है ऐसे? जैसा मैं दमन रहता हूँ, वापी मंदिर में अलग तारीख आती है, मम्मी की अलग आती है। अब आपकी श्रद्धा है कि माँ को ज्यादा वेटेज देना है या मंदिर वालों को ज्यादा वेटेज देना है? कारण पूछा है इन्होंने, संजय जी ने, तो कारण यही है कि इसे स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है। कई सारे पंचांग प्रचलन में हैं और उनमें थोड़ा बहुत भेद होता है, तो आगे पीछे कुछ हो सकता है। इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि अगर आपने आज से मानी या कल से मानी, अगर आपके यहाँ एक पंचांग फॉलो किया जा रहा है उसे आप कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, that is okay, केवल sir. केवल इतना ही अंतर होता है, कहीं कहीं इसमें चूंकि एक प्रयास रहता है सोलर कैलेंडर के साथ एडजस्ट करने का, जो हमारे ये सब ल्यूनर कैलेंडर्स हैं, तो उनको सोलर कैलेंडर के साथ एडजस्ट किया जाता है, जिससे कि ऐसा न हो कि जैसे कि मुहर्रम और ईद और ये हैं जो साल भर घूमते रहते हैं, कभी जाड़े में, कभी गर्मी में, कभी बरसात में, तो इनमें थोड़ी सी स्थिरता आ जाए, तो इसके लिए सोलर कैलेंडर से एडजस्ट करते हैं। तो उसमें फिर कभी क्षय होता है महीनों का, कभी अतिरिक्त मास आ जाता है, तो ये एडजस्टमेंट की फाइन प्रॉब्लम्स हैं। तो कई सारे पंचांग हैं, कई सारी परंपराएं हैं, तो कोई सा पंचांग फॉलो करता है, कोई सा पंचांग फॉलो करता है, तो बस उसमें अधिक से अधिक एक दिन का अंतर आता है, तो उसमें कोई ऐसा विशेष कोई उसके कारण व्यतिक्रम नहीं होता, तो मान लीजिए कुछ भी। क्या इसमें कमल अंकल ये कहा जा सकता है कि हमारा कोई भी त्योहार मनाने का मकसद क्या है, कि हम उनके गुणों को याद करें कि इतने महान जीव ऐसे निर्वाण को प्राप्त हुए थे, तो वो याद करने की एक हमने तिथि मना दी गई है। तो अगर मैं एक दिन पहले उनको याद करती हूँ या एक दिन बाद याद करती हूँ, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली मेरे वो टारगेट हैं, मेरे के उनके गुणों के, उनके रास्ते पे चल के वो निर्वाण प्राप्त करना है। तो शायद इतना बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि एक दिन पहले का है या बाद का है। एक्चुअली तो मुझे 365 के 365 दिन अपने 24 भगवानों के रास्ते जो चले हैं उनको याद रखना है, और एक दिन को हमने महत्वपूर्ण दे दिया जिससे कि हमारी सारी मेमोरी ताजा हो जाए और हम उसे चलना शुरू कर दें। तो शायद इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल बहुत सुंदर। आखिरी पॉइंट, खाली एक नीरज भाई का पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। शुभ कर्म न छोड़ें, शुभ कर्म का फल छोड़ें। हम लोग फल में तो बहुत मग्न रहते हैं और शुभ कर्म करने में बड़ा हेजिटेट करते हैं कि इसे मत करना। जय जिनेंद्र। बिना कार्य किए फल की इच्छा रखने लगे आजकल हम लोग। पुरुषार्थ तो करते नहीं है, फल पहले चाहते हैं। नहीं, एग्जैक्टली तो एक ये इसी से संबंधित क्वेश्चन है, एंड ज्योति सिंघवी ने पूछा है, शी इज जॉइंड अस फ्रॉम द यूएस, तो शी इज आस्किंग, एंड ज्योति इफ यू वुड लाइक टू आस्क डायरेक्टली यू कैन। Okay, I'll call out the question. It was mentioned our gods don't give us directly, but they give us a lot indirectly. How do our gods give us indirectly, and what do we need to do to ask, act, and receive? YK uncle. Mute पे है uncle. एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल इसका बिल्कुल एक्सप्लेन कर देगा। दो मित्रों का एक बेटा, एक की डेथ हो गई, उसके बेटे के दिवाला निकल गया। वो अपने चाचा के पास गया, फ्रेंड के पास, बोला चाचा मैं तो दिवाला निकल गया। बोले नहीं, तू तो करोड़पति है। बोले कैसे? बोले तहखाने के राइट हैंड कॉर्नर में तू जाना, खुदाई करना, वहां तुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, तेरे पिताजी तेरे लिए छोड़ गए हैं। वो गया, उसने देखा हीरा जवाहरात करोड़ों रुपए थे, और वो निकाल के लाया और चाचा को दिए
कि मेरे नहीं है, ये तो तुम्हारे हैं। तब चाचा ने कहा, हैं तो ये तुम्हारे, मैंने तो सिर्फ रास्ता बताया था। यही हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है। वो डायरेक्ट नहीं देते, लेते भी नहीं, पर रास्ता बता देते हैं जहां हम माला माल हो जाते हैं, हो रहे हैं, हुए हैं। जय जिनेंद्र। नहीं, सॉरी अंकल जी, आई डिसएग्री कंप्लीटली। वीतरागी भगवान मोह माया प्राप्त करने का रास्ता कतई नहीं बताते हैं, वे सिर्फ मोक्ष मार्ग का रास्ता बताते ये हैं। तो नहीं कहा उन्होंने, बता नहीं उन्होंने रहे, ये तो नहीं उनके कहा प्रति जो हमारी देते श्रद्धा हैं, है। नहीं हाँ, देते कमल तो वो देते तो वही वो देते मोक्ष हैं मार्ग भी ना, नहीं है, वो तो मार्ग सिर्फ मार्ग बताते वो तो हैं, सिर्फ उपदेश देते हैं। वो सिर्फ हितोपदेश का जिनवानी, उनका। वो तो सिर्फ जिनवानी का उपदेश देते हैं। अरे वही तो सबसे हितोपदेशी बड़ा, मुझे माला माल कर देता है। वही तो बड़ा सबसे बड़ी चीज है। लेकिन और क्या है? क्वेश्चन का कंटेक्स्ट वो नहीं था। मेरे क्वेश्चन ख्याल का से तो वही था कि नहीं, मैं वो माला माल कैसे हो गया जब वो मुझे कुछ नहीं दे रहे। इस तरह से मैं माला माल हो गया कि उनके बताए रास्ते पर मैं सबसे चलूंगा। बड़ी विभूति तो वही है ना, तो वो विभूति प्राप्त करने का मार्ग उन्होंने बताया। यही उनका हमारे लिए यही विरासत है उनकी, यही हमारे लिए लेगेसी है, यही रिक्वेस्ट है उनका। उसमें एक पॉइंट इसीलिए ऐड हम करना चाहूंगा। हाँ, इसीलिए एक हम point- अपने को उनके नाम के साथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं कि हम जैन हैं, हाँ, वरना हम क्यों कहते। हाँ अंकल, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सांसारिक दुनिया में हम लोग ये मानने लग गए हैं कि अगर हम करोड़पति अरबपति हो जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिल गया, पर सच्चाई में जो मिलना है वो है जिनवाणी का ज्ञान। तो वेरी गुड। भाई के अंकल जो कह रहे हैं ना कि हमारी सच्चाई, जो सच्ची जो हमारी धन दौलत है वो है जिनवाणी, क्योंकि हमारे पूजा पाठ में भी आता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को हम लोग क्या मान लेते हैं, धन दौलत, पर जैन धर्म में लक्ष्मी बोला है मोक्ष को। तो यहाँ पर क्या भ्रांति हमारे मन में ही है। जब भी कोई बोलता है कि हमें कुछ भगवान से मिल जाए तो हम क्या सोचते हैं, हमें कुछ सोना चांदी मिल जाए। पर हम जैन लोग कहते हैं कि भगवान से हमें क्या लेना है, क्या मिलना है, हमें मिलना है मोक्ष मार्ग का ज्ञान, वो रास्ता। तो जो वाईके अंकल ने जवाब दिया ना, वो इतना अच्छा जवाब है कि इसको हमें सोचना है कि हमें मिल क्या रहा है भगवान से। हमें वो धन मिल रहा है, वो दौलत मिल रही है कि तो इस दुनिया में है ही नहीं, इस दुनिया से पार लगा देगी। तो ये अपने को उसमें थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सही करना है कि हमें धन दौलत नहीं मांग रहे हैं भगवान से, कुछ हम पास करने के लिए या कुछ गाड़ी बंगला नहीं मांग रहे हैं। भगवान से हम कह रहे हैं कि भगवान हमें वो ज्ञान दो जिससे कि मैं खुश हो जाऊं। कौन सा खुश? वैसा खुश जिसमें कोई निराकुल, मतलब आकुलता से रहित खुशी मिल जाए हमको, वो है मोक्ष। आचार्य समंत भद्र का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है आप्त मीमांसा, तो उसमें उन्होंने परिभाषा दी है, यानी कि क्या होता है आप्त, क्या है। तो वो जो हम कहते हैं ना कि 3 गुण चाहिए, तो उस पे हम टेस्ट करके देखते हैं, तो उसमें एक बहुत प्रमुख गुण हितोपदेशिता है। बल्कि उसी हितोपदेशिता के कारण हम अरहंत के का नाम पहले लेते हैं, सिद्ध का नाम जो कि बिल्कुल सर्वतः शुद्ध आत्मा है, उनका नाम बाद में लेते हैं। तो उनका यही हमारे लिए वरदान है, यही उनका हमारे लिए उपकार है, तो इसीलिए हम सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। तो वो मोक्ष मार्ग का जो निरूपण किया है उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, जिससे अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं, तो वही तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वही हमारी सबसे बड़ी विभूति है। So this means we can conclude what Jyoti was asking. If she was asking about the ultimate moksha, then it is okay. If she was asking कि हमारे भगवान they give us money and all, wealth and all, then the answer was not right. Right, Jyoti? No, absolutely. And the answer was not intended there, Dinesh ji. It was more, see, देखिए अभी इस ग्रुप में इतने लोग हैं, 50 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया, हर कोई हमें कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन उनके क्वेश्चन से उनको हम बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं, स्वतः ही ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान के वीतरागी स्वरूप को देख के हम स्वतः ही कुछ गुण ग्रहण करते हैं या ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, और फिर धीरे धीरे जब हम वो इच्छा रखते हैं तो धीरे धीरे वो हमें आ जाते हैं, तो हमें इनडायरेक्टली सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आत्मा की शुद्धि ही हमारा परम लक्ष्य है। तो आई थिंक इसमें मतलब समझने में बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली मिलर। स्वाति जी, मैं एक पॉइंट स्पेड करना चाहता हूँ। जो अगला सेशन होने वाला है अपना अनेकांत के ऊपर, उसमें निश्चय व्यवहार के ऊपर भी शायद टच होगा।
तो हमें वहां समझ में आएगा कि क्या चीज निश्चय से समझनी है, क्या व्यवहार समझनी है और अनेकांतवाद का क्या अर्थ है। तो वहां ये क्लियर बात हो जाएगी। तो व्यवहार में तो हम कहते हैं भाई सोना चांदी हमें मिल जाए, पर निश्चय का जो आंसर वाई के अंकल ने दिया है वो फाइनल आंसर है। उस आंसर का कोई वो नहीं है कि उसमें अपन मतलब वो तो चीज अल्टीमेट है हमारे लिए। यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ हाँ जी। कि जैसे हम गेहूं बोते हैं तो धान अपने आप मिल जाता है, कोई धान के लिए गेहूं नहीं बोता है, बोया तो गेहूं जाता है लेकिन धान मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज को ऐसा निश्चय करें कि कर तो हम मोक्ष मार्ग के लिए रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो चीज की बात हो रही है, पैसा अपनी सब चीज वो धान के बराबर है, वो तो अपने आप ही मिल जाता है। अगर हम कार्य करें भूसे से भूसा, हाँ जी वही भूसा, हाँ जी सरिता सॉरी धान बोते हैं और भूसा साथ में मिल जाता है। तो उस सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य वही था कि जो हम ऐश आराम धन दौलत मांग रहे हैं वो एक भूसे के ही बराबर है। कार्य तो हमें मोक्ष जाने का करना है, लेकिन वो सब चीज तो बिल्कुल मिलेगी साथ में, बिल्कुल ये व्यवहारिक चीजें तो मिलती हैं साथ में। जो सरिता जी ने कहा उसी पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है। तो अगर आप पुण्य कर्म करोगे, अच्छे सही मार्ग पे चलोगे, तो जैसा आपने बोला लक्ष्मी और आगे के जो धन सुख है वो तो हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, बट हमारा अल्टीमेट एम मोक्ष मार्ग ही है। जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए सब राजा महाराजा मतलब सब वो ही थे और वो उस पथ पे चले और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही लाइन बोलूंगी, मुक्ति मग में पुण्य तो सहज ही परिणाम है, किंतु उसे शिवमग मानना मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है। तो विद दिस आई थिंक वी कैन एंड द सेशन। हम ऑलमोस्ट 9:30 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे आज एड्रेस नहीं हुए हैं, सो मे बी वी विल पोस्ट देम इन द ग्रुप एंड आई वुड जस्ट एज वी क्लोज द सेशन टुडे, I would just mention that we have very good and deep dive sessions. आज का बहुत ब्रॉड बेस्ड सेशन था, डीप डाइव सेशंस आ रहे हैं। हमें नमोकार मंत्र, पंच परमेष्टि, 22 परिचय और आगे आने वाले सेशंस में ऐसी बातें पता चलेगी जो हम रेगुलर करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम क्यों करते हैं। तो if all of us join, we will learn together with each other. And as I end the session today, नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में, एक हफ्ते पहले डिसाइड किया गया कि हम 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया। कमल अंकल, वाईके अंकल ने क्या गाइडेंस हमेशा रहता है, कमल अंकल ने बहुत डिटेल में करवाया। डॉक्टर विभा ने पूरा एक प्लान बनाया कि बेसिक्स की सीरीज कैसे हो सकती है, जिसने हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद की। तो आई थिंक ऑल दिस एंटायर ग्रुप इज कमिंग टुगेदर to learn and grow with each other. Thank you so much Neeraj bhaiya for the session today. Thanks to our mentors and look forward कि next बार हम बहुत कुछ सीखेंगे। डॉक्टर विभा सेशन लेने वाली हैं and I am very very excited for the new learning that I'll get about the very very basic topics in Jainism. और अगले सेशन में आप लोग अपनी फैमिली के और मेंबर्स के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ भी बैठिए, क्योंकि जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो एक मतलब हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इट वुड बी ग्रेट इफ एवरीबॉडी कैन जॉइन। तो विद दैट एक आशीर्वाद सिर्फ मैं नीरज को दूंगा, अगर वो 24 लोगों को दीक्षा देते हैं आचार्य भगवान, तो जो पहला होता है वो सीनियर मोस्ट होता है, राइट? तो नीरज को जो पहला सेशन दिया गया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रही होगी नीरज की। आशीर्वाद। धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जो भी त्रुटियां हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।